टुडे इज अ स्पेशल फ्राइडे। साल के 52 वीक्स में ऐसा मौका कम ही आता है जब बॉक्स ऑफिस पर कोई बॉलीवुड रिलीज नहीं आती, लेकिन वो रेयर फ्राइडे आज है। अब पिछले हफ्ते आई थी सलमान खान की रेस 3 और अगले हफ्ते आएगी रणबीर कपूर की संजू। अब ऐसी दो मूवीज के बीच में कौन सा प्रोड्यूसर अपनी फिल्म को शहीद करवाना चाहेगा? वेलकम टू देसी मार्टिनी स्पेशल फ्राइडे फ्लेक्स प्रेजेंटेड बाय चेजबेड, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवॉर्स ऑक्शन साइट। कोई हिंदी फिल्म भले ही रिलीज ना हुई हो, बट देसी मार्टिनी hosted a special premiere screening of Warner Brothers' Ocean's 8. We've all been fans of George Clooney and company pulling off world's most extraordinary heists in the last 2 decades. But this time, it was an all-women show led by Sandra Bullock. Holding the front lines this time are Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, ably supported by the rest. Co-written and directed by Gary Ross, Ocean's 8 doesn't really spark the kind of excitement you expect from a heist movie. Our MJ, Avipsha Sen Gupta, gave the film 2.5 stars and said, "Seeing a fabulous pack of con women was refreshingly sexy. Only wish they didn't put so much of effort to look cool." Our other MJ, Fahad Ahmed, watched the film and gave it 2 stars. He said, "Too many plot twists towards the climax make things too convoluted for no reason. The trademark humorous element of Ocean series was good to see though." If you're a Ocean series fan, तो जाके फिल्म देखने में क्या हर्ज है? Based on initial 1000 ratings on Desi Martini, the film is currently placed at 2.9 stars. Race 3, संजू या कोई भी और फिल्म, अगर आप जीतना चाहते हैं फ्री टिकट्स तो आंसर कीजिए एक आसान सवाल का और आप बन सकते हैं गारंटीड विनर। लास्ट वीक के विनर्स के ट्विटर हैंडल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। और अब देखते हैं 2 लोगों के व्यू जो आपको रीजंस देंगे टू वॉच ओशंस 8 और नॉट टू वॉच इट। नहीं यार, आज नहीं, मतलब आज इस सेगमेंट में जेंडर को लेके कुछ भी नहीं करेंगे। नो मैन वर्सेस विमेन, ओके? यस, सोचना भी मत। लेकिन जॉर्ज क्लूनी बहुत बेटर था यार। I didn't know the whole of Ocean's family were heist experts, world's best heist experts. Hi, I'm MJ Avipsha and I'm going to tell you why you should absolutely watch Ocean's 8. यार अगर ये ओशन सीरीज की इंस्टॉलमेंट नहीं होती ना, तब मैं इतना डिसअपॉइंट नहीं होता। Hi, I'm MJ सुबोध और मैं आपको बताने वाला हूँ why you should not watch Ocean's 8. Watch it because the girl gang led by Sandra Bullock is one of the best assembly of cast we have seen in a very long time. Sandra Bullock, Kate Blanchett, Anne Hathaway, Rihanna, Helena Bonham Carter, all of them pulling off a fabulous heist. और क्या चाहिए यार? एक्साइटमेंट एंड थ्रिल, एक्साइटमेंट, थ्रिल और ह्यूमर ही तो ओशन सीरीज का सिग्नेचर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था और बड़ी स्लगिश पेस पे चलते हुए मूवी कभी भी आपका अटेंशन नहीं होल्ड कर पाती। Why would you say that about the humor? Oh, I get it. इस मूवी का ह्यूमर इतना सटल और क्लासी था that it's not everybody's cup of tea. Watch it because it carries an excellent cocktail of style and humor. हर कैरेक्टर की स्टाइल यूनिक है। कॉपीड स्टाइल एंड कॉपीड ह्यूमर। यार आई एम सॉरी बट मुझे ये बोलना ही पड़ेगा कि फिल्म पूरी तरह से ओशंस 11 ही है, बस उसका जेंडर चेंज कर दिया है। मतलब फिल्म के स्टाइल से लेकर के उसके सब प्लॉट्स तक सब कुछ आपको ओशंस 11 की याद दिला रहा है। मतलब क्या पॉइंट है यार ये? Watch it because the screenplay is always steps ahead of you. It surprises you, it keeps you guessing, it builds up the tension and it raises a few laughs here and there. Perfect recipe for a heist movie. फिल्म के प्लॉट ट्विस्ट इतने नीडलेस और कंफ्यूजिंग है कि वो सारा मजा खराब कर देते हैं। मतलब एक पॉइंट के बाद लग रहा था राइटर्स के पास लिखने के लिए कुछ भी नहीं है और वो बैठ के बस मजे ले रहे हैं। Performances. अब इतनी रिच कास्ट है तो you can definitely expect some of the finest performances on screen. Despite being directed by Gary Ross, the film has traces of Steven Soderbergh in it, जो हम सब कब से मिस कर रहे थे यार। यार इतनी अच्छी कास्ट और फिर भी प्रिटेंशियस स्वैग। मतलब ओशंस 8 की प्रॉब्लम यही है कि वो एक सेपरेट एंटिटी की तरह फंक्शन नहीं करती, वो सब कुछ पुराना ही दोबारा से ट्राई करती रहती है। जॉर्ज क्लूनी, ब्रैड पिट और मैट डेमन का फैन होने का मतलब यही है that you have to hate this movie? अरे it's a popcorn watch यार, just go and watch it. यार मूवी से ज्यादा मेरा ध्यान इस बात पे था कि मेरे पॉपकॉर्न में बटर कितना है, तो मतलब समझ गए होगे आप लोग क्या है। तो इस वीक का सवाल brought to you by चेजबेड है, which of these actors has the most number of Filmfare Best Actor Award? A. ऋतिक रोशन, B. शाहरुख खान, C. रणबीर कपूर या D. आमिर खान? अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज ट्वीट कीजिए अपने आंसर टैगिंग देसी मार्टिनी @DMmovies. Please do not forget to use the hashtag FridayFlix with चेजबेड. And now it's time to check out the audience reaction. Like a good sequel, anyone who's watched Ocean series, they would love it. It's not like those normal Hindi movie एक story के लिए they take out hours, नहीं. It was like brilliant. I liked it. Simple and time pass was very nice. Second half was pretty interesting and the twist in between was amazing. It was amazing. It was amazing. It's a very subtle, very feminine kind of version of the Ocean series. So yeah, it lives up to it. It kept you gripping. It started slow, but then, what next? What next? Sandra Bullock stole the show. Out of 5, how much would you rate it? I would give 4, 4.5. 4. 4, 4.5. 3. 3. What if I told you रणबीर और आलिया शादी करने का सोच रहे हैं? Yes. Check all the Bollywood highlights of this week with Dipali.
बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही है रणबीर आलिया की रिलेशनशिप। मतलब अभी रणबीर ने रिलेशनशिप ऑफिशियली की थी और अब सुनने में आ रहा है कि दोनों शादी भी प्लान कर रहे हैं। रणबीर का लव एरिया तो इस लेवल पे आ चुका है कि उन्हें पानी भी शरबत लग रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रणबीर ने खुद कहा है। एनीवे, दोनों एक दूसरे को लेके बहुत श्योर हैं और 2 साल में दे कैन टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। आराम से यार, जस्ट गो विद द फ्लो। अब शादी की बात हुई है तो हमने ये भी सुना है कि रणबीर और दीपिका भी इस साल 10 नवंबर को शादी कर रहे हैं। अभी अनुष्का शर्मा की तारीफ करनी है या उनको डांट लगानी है मुझे नहीं पता, लेकिन सोशल मीडिया पे उनको दोनों मिला। तो विराट कोहली के ट्वीटेड वीडियो में अनुष्का इज सीन rebuking a man for littering the streets. The man named Arhan Singh responded through her Instagram post and said कि भाई अनुष्का थोड़े एटिकेट्स होने चाहिए ना डांटने के। सोशल मीडिया भी डिवाइड हो गया और कुछ ने विराट अनुष्का को प्रेस किया और कुछ ने ट्रैश। इंटरेस्टिंगली, जिस बंदे को अनुष्का ने डांटा था वो 90s का चाइल्ड एक्टर निकला, who has worked with शाहरुख खान and even शाहिद कपूर। तो अमिताभ बच्चन बदला लेने आ रहे हैं, किससे ये तो नहीं पता। सो बिग बी ने स्टार्ट कर ली अपनी नेक्स्ट फिल्म जिसमें उनके साथ हैं तापसी पन्नू, टाइटल बदला। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं सुजॉय घोष, while शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट is producing it. Big B will next be seen in Yash Raj's Thugs of Hindustan, where he is sharing screen with Aamir Khan for the first time. बॉलीवुड के देसी बॉयज जिन्होंने इस कंट्री की सारी पेट्रियोटिक मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, क्लैश करने वाले हैं इस इंडिपेंडेंस डे पर, जहां अक्षय कुमार की गोल, जिसका टीजर हम सब देख चुके हैं, पहले से ही 15 अगस्त को आने वाली थी। जॉन इब्राहिम ने भी अपनी फिल्म सत्यमेव जयते की रिलीज डेट इंडिपेंडेंस डे ही अनाउंस की है। अब देखना ये पड़ेगा कि इनमें से कौन अपनी रिलीज डेट को पहले शिफ्ट करता है। तो इस वीक की हाइलाइट्स में इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते आ रही है संजू। We'll come back next week, but you keep watching Friday Flicks presented by ChaseBid, world's largest reverse auction website. Just remember, the lowest unique bid wins. और रेस 3 ने बॉक्स ऑफिस पे कैसी धूम मचाई? लेट्स टेक अ लुक एट द बॉक्स ऑफिस अपडेट्स विद आशीष। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एडिशन ऑफ फ्राइडे फ्लिक्स बॉक्स ऑफिस। इस बार की तो सलमान खान और उनके फैंस के लिए कुछ ज्यादा ही मीठी हो गई और जैसा कि रेस 3 से एक्सपेक्टेड था, फिल्म ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े और ढेर सारे नए रिकॉर्ड्स बनाए। उस रेस का सिकंदर मैं हूं। तो चलिए नजर डालते हैं इस वीक की बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंसेस पे। रेस 3 ने अपने ओपनिंग डे पे कमाए 29 करोड़ और इसने बागी 2 के 25 करोड़ और पद्मावत के 19 करोड़ के कलेक्शन को पीछे छोड़ा। और रेस 3 ने वीकेंड पे कमाए 106 करोड़ और ये पद्मावत के 5 डे एक्सटेंडेड वीकेंड को, जो कि 114 करोड़ का था, बीट नहीं कर पाई। रेस 3 अपना फर्स्ट वीक एंड करेगी 150 करोड़ से ज्यादा के ग्रॉस के साथ। रेस 3 इतनी तेज रफ्तार से भाग रही है कि अभी इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे ब्रेक लगाना बहुत ही मुश्किल होगा, एज इस वीक बॉलीवुड में कोई भी बड़ी रिलीज नहीं है और हॉलीवुड रिलीजेस ओशियंस 8 और द इनक्रेडिबल्स 2 का एक अपना अलग मार्केट होगा, जिससे भाई की फिल्म पे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैसे भी भाई से कौन पंगा लेता है। अब आते हैं इस वीक की रिलीजेस पे, जहां हॉलीवुड की 2 बड़ी फिल्में विल बैटल इट आउट एट द बॉक्स ऑफिस। वन इज सैंड्रा बुलक लेड ओशियंस 8, जो कि जॉर्ज क्लूनी की ओशियंस 8 सीरीज का एक स्पिन ऑफ है। Why do you need to do this? Because it's what I'm good at. And Sandra will appear as Danny Ocean's sister Debbie. फिल्म को इंटरनेशनल मार्केट पे मिक्स टू पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और फिल्म का इंडिया में कुछ खास बज़ नहीं है। ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 करोड़ कमा सकती है अपने ओपनिंग डे पे और इसका 10 करोड़ क्रॉस करना तभी पॉसिबल है अगर इसे वर्ड ऑफ माउथ अच्छा मिले। वहीं इनक्रेडिबल्स 2 सीक्वल है 2004 में आई द इनक्रेडिबल्स का, जिसने बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का ऑस्कर भी जीता था। Are we going to talk about it? और इसे बेस्ट एनिमेटेड फिल्म्स ऑफ ऑल टाइम में भी काउंट किया जाता है। जहां 2004 में शाहरुख खान ने मिस्टर लाजवाब के कैरेक्टर को आवाज दी थी, काजोल इस फिल्म में इलास्टिक गर्ल का हिंदी वॉइस ओवर देंगी। फिल्म को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव रिव्यूज मिल रहे हैं और इसने ऑलरेडी हाईएस्ट ओपनिंग वीकेंड एवर फॉर एन एनिमेटेड फिल्म का रिकॉर्ड भी बना लिया है। That is freaky. इंडिया में अभी भी समर वेकेशंस चल रही हैं और डिज्नी ने टीवी कमर्शियल्स और मार्केटिंग में कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो ये फिल्म 4 से 5 करोड़ कमा सकती है अपने ओपनिंग डे पे और 20 करोड़ या इससे ज्यादा कमा सकती है ओपनिंग वीकेंड पे। It means fire, Robert. So that's all we have for this week's box office and let's see संजू क्या जादू दिखाती है नेक्स्ट वीक। इस वीक के टॉप ट्विटर रिएक्शंस भी देख लेते हैं। And now it's time for trivia. हम दिल दे चुके सनम is one of Sanjay Leela Bhansali's most remembered romances starring Salman Khan, Aishwarya Rai and Ajay Devgan. Did you know that Aishwarya, who was just 2 films old in Bollywood, was cast by Sanjay Leela Bhansali? But the producers were not convinced that she could play the desi girl they were looking for because she looked really western. Sanjay then suggested to plait her hair and dress her in ghagra choli to get the look right. It worked like magic with the audiences, as the actress was well received as Nandini in the 1999 super hit that completed 19 years this week. So that's all we have for you in this week's episode of Friday Flicks presented by ChaseBid, world's largest reverse auction site. Any Rajkumar Hirani film is an event we all look forward to और वो event launch हो रहा है अगले हफ्ते. To get the best and first updates on Sanju, catch Friday Flicks next week and until then just remember, critics don't review a movie, audiences do.